Hello, learners. So let's start this session with a question itself. If I ask you all which area has the lowest temperature, then each one of you might answer an area or state or country whose temperature is in negative numbers. Like in winters, the temperature of Canada falls down to minus 20 degrees, or in Ladakh, it goes down to minus 10. Now, do you know how the calculations of these negative numbers are done? We will learn this today. We are going to start the very first chapter of your class 7, which is integers. And this is not something you haven't done before. You have already studied about numbers before. आपको पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, और आज हम देखेंगे कि ये जो इंटीजर्स हैं ये क्या होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द मेन कंसेप्ट्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ इंटीजर्स टुडे. What all you will learn in this chapter? We will learn about what are integers, representing integers on number line, or you can say adding or subtracting integers on number line, addition and subtraction of integers and their properties, multiplication and division of integers and their properties, and NCERT based questions. We will be solving some of the questions from NCERT, but if you have to go through all the solutions, you want to know all the solutions, you can go to our website or our app where you will get each and every answer there. All NCERT questions and their solutions are available there. So let's start with the introduction. So let's begin this with full enthusiasm. What are integers? When we add negative numbers to the whole numbers, they all become integers. अब इसका क्या मतलब है? हमें पता है natural numbers क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4 and so on. Whole numbers क्या होते हैं? जब हम natural numbers में 0 add कर देते हैं, it becomes whole numbers. अब अगर इन्हीं whole numbers में हम negative numbers add कर देते हैं, तो ये बन जाते हैं हमारे integers. ये बन जाते हैं integers. So जो ये negative numbers हैं, जब हम इसको whole numbers में add कर देते हैं, so these become our integers. Now what is a number line and how do we represent numbers on number line? हमें पता है एक साइड पॉजिटिव इंटीजर्स है, एक साइड नेगेटिव इंटीजर्स है एंड 0 है. एंड दीज एरो रिप्रेजेंट कि जो नंबर्स हैं वो एंडलेस है एंड आप इस नंबर लाइन को जितना मर्जी एक्सपैंड कर सकते हो. अब मैंने 0 को अलग से क्यों बोला? Why did I say it separately? Because 0 is neither positive nor negative. जो 0 है it is neither positive nor negative. एक साइड हमारे ये नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं और दूसरी साइड हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं. Moving on, there are some important terms. What is additive inverse? The additive inverse of any integer a is minus a and the additive inverse of minus a is a. Now, what does this mean? अगर मेरे पास एक इंटीजर है, let's say 8, तो इसका additive inverse क्या होगा? minus 8. मेरे पास एक इंटीजर है -8, इसका additive inverse क्या होगा? 8. ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल कि अगर हमारे पास एक नेगेटिव इंटीजर है तो उसका एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका एडिटिव इनवर्स नेगेटिव होगा. नाउ व्हाट इज अ सक्सेसर? अ नंबर दैट कम्स आफ्टर दैट नंबर, और यू कैन से एडिंग 1 टू दैट नंबर वी गेट द सक्सेसर ऑफ दैट नंबर. अब मेरे पास एक नंबर है 8. 8 के बाद क्या आता है? व्हाट कम्स आफ्टर इट? इट इज 9. तो 8 का सक्सेसर है 9.
8 में if I add 1 I get 9. So 8 का successor is 9. Now what is a predecessor? A number that comes before that number. When we subtract 1 from that number, we get the successor of that number. मेरे पास एक number है 8. इसका predecessor क्या होगा? 7. Alright. अगर मैं 8 में से 1 subtract करती हूँ, I get 7. तो 7 is the predecessor of 8. I hope this is understood to all. Now let us quickly brush through the topics that how to add or subtract integers. Here are some basic rules which you have to follow throughout your calculations. So the first is, if I have a positive integer and the second one is also positive integer, एक positive integer है, दूसरा भी एक positive integer है, तो I also get a positive. That means two positives make a positive. आपको उसको add करना है. Second is, अगर मेरे पास एक integer negative है, दूसरा integer भी negative है, तो मेरा result क्या होगा? Positive. That means कि two negatives makes a positive. I have to add those integers. Third is, अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक नेगेटिव इंटीजर है तो रिजल्ट इज नेगेटिव. दैट मीन्स अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव मेक्स अ नेगेटिव. दैट मीन्स यू हैव टू सबट्रैक्ट द इंटीजर्स. फोर्थ इज, अगर एक नेगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है तो भी क्या होगा? रिजल्ट इज नेगेटिव. नाउ लेट अस do some examples and see these basic rules. पहला है एक पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो रिजल्ट क्या होगा? टू पॉजिटिव्स मेक्स अ पॉजिटिव. इनको हम ऐड कर देंगे तो रिजल्ट इज पॉजिटिव. सेकंड इज, एक नेगेटिव है, दूसरा भी नेगेटिव है, तो मेरा रिजल्ट क्या होगा? दो नेगेटिव्स क्या होते हैं? Positive. So I have to add these. That is 8 and 8 is 16. मेरे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक नेगेटिव इंटीजर है, तो मेरा आंसर क्या होगा? नेगेटिव. दैट इज प्लस माइनस बिकम्स माइनस. सो 8 माइनस 8 इज 0. और 0 के आगे ना हम प्लस लगाएंगे ना हम माइनस, क्योंकि हमने पढ़ा है कि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. लास्टली, एक नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो रिजल्ट क्या होगा? माइनस प्लस बिकम्स माइनस. तो 8 माइनस 8 इज 0. लेट अस क्विकली रिवाइज. हमने क्या किया अभी? टू पॉजिटिव्स दैट इज प्लस एंड प्लस क्या होगा? प्लस. माइनस एंड माइनस क्या होगा? प्लस. प्लस एंड माइनस क्या होगा? माइनस. माइनस एंड प्लस क्या होगा? प्लस. सो दिस यू हैव टू लर्न एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपकी सारी कैलकुलेशंस में आगे काम आएगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन. अब हम नंबर लाइन पे इंटीजर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? फर्स्ट इज, if we add a positive integer we go to the right. अगर हम एक positive integer को add करते हैं तो we go to the right. ये हमारे पास नंबर लाइन है. अब हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं साथ में. ऑलराइट. सो पहला एग्जाम्पल लेट्स सी हमारे पास है 6 या -6 की बात कर लेते हैं हम. ठीक है, -6 की बात करते हैं. -6 में मुझे एक पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करना है. ऐड करना है एक पॉजिटिव इंटीजर को. यहाँ पे ब्रैकेट या पॉजिटिव लगाने की जरूरत नहीं है, बट आपको समझाने के लिए आई एम टेलिंग यू. तो -6 प्लस और प्लस हमने पढ़ा क्या होता है? प्लस. पर माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस. दैट इज 6 minus 3 is 3. माइनस एंड प्लस इज 3. -3 आंसर आ गया.
अब अगर हम नंबर लाइन पे देखें तो -6 हमारे पास है, इसमें हमें क्या करना है, 3 को ऐड करना है, हमें 3 को ऐड करना है। सो वी गो टू 1 2 एंड 3, 3 बार ऐड कर दिया, 3 ऐड कर दिया 6 में, तो वी कम टू -3। आर वी मूविंग टुवर्ड्स राइट? क्या हम राइट की तरफ गए? यस वी डिड। ऑलराइट, second is if we add a negative integer we go to the left। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मेरे पास -6 है, मुझे क्या करना है, ऐड करना है एक नेगेटिव इंटीजर, मुझे एक नेगेटिव इंटीजर को ऐड करना है। तो ये क्या होगा, -6 प्लस माइनस हमने पढ़ा क्या होता है, -3, बट माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, विच बिकम्स 9। सो अगर -6 है हमारे पास, ठीक है, हमें क्या करना है, -3 करना है उसमें से। सो 1 2 3 वी कम टू -9, और हम कहां की तरफ गए, वी मूव्ड टूवर्ड्स द लेफ्ट। पहले दो क्लियर हो गए। थर्ड इज इफ वी सबट्रैक्ट अ पॉजिटिव इंटीजर वी गो टू द लेफ्ट। अब एग्जाम्पल हम वही लेते हैं। अगर मेरे पास एक नंबर है -6, ठीक है, मैंने क्या करना है, अब सबट्रैक्ट करना है एक पॉजिटिव इंटीजर को। -6 प्लस माइनस क्या होता है, -3, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, दैट बिकम्स 9। तो कह रहे हैं अगर मेरे पास एक नंबर है -6, ठीक है, इसमें हमने सबट्रैक्ट करना है एक पॉजिटिव इंटीजर को, दैट मीन्स हमने सबट्रैक्ट किया 3, वी कम टू -9। हम किसकी तरफ मूव करें, वी मूव्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट। फोर्थ इज इफ वी सबट्रैक्ट अ नेगेटिव इंटीजर वी गो टू द राइट। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेरे पास एक नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, अब मुझे सबट्रैक्ट करना है एक नेगेटिव इंटीजर को, मुझे सबट्रैक्ट करना है एक नेगेटिव इंटीजर को। -6 है, माइनस और माइनस क्या होता है, 2 माइनस मेक्स अ पॉजिटिव, दैट मीन्स प्लस करना है 3, पर माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, तो 6 - 3 इज 3, -3। सो अगर मेरे पास नंबर है -6, मुझे उसमें 3 ऐड करना है, दैट बिकम्स 1 2 एंड 3। मैं आई -3 की तरफ, वी मूव्ड टूवर्ड्स द राइट। सो दीज आर द मेन कंसेप्ट्स। और आपने यहाँ देखा होगा कि यहाँ पे हमने जो रूल्स सीखे थे, जो यहाँ पे हमने ये रूल्स सीखे थे, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमने हर जगह ये रूल्स हमने अप्लाई करे हैं। ऑल राइट, सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। Now before starting with the questions, I'll let you know guys that हम यहाँ पर कुछ limited questions solve करने वाले हैं NCERT से। तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, किसी भी एक्सरसाइज का कोई भी आंसर चाहिए, तो यू कैन गो टू आवर ऐप और वेबसाइट, जहाँ पे आपको NCERT की चैप्टर वाइज टेक्स्ट बुक्स मिलेंगी एंड चैप्टर वाइज आपको हर एक एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। सो यू कैन गो देयर and have a look. Let us start with question 1. Following number line shows the temperature in degrees Celsius at different places on a particular day. हमारे पास ये नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन पे एक पर्टिकुलर डे पे अलग अलग प्लेसेस पे जो टेम्परेचर है वो शो किया गया है। So the first question is observe this number line and write the temperature of places marked on it. अब इसमें हमें क्या करना है, बस हमें ये नंबर लाइन पर बताना है कि जो डिफरेंट प्लेसेस हैं उनके टेम्परेचर क्या हैं। सो आंसर फॉर ए, ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स लिख देती हूँ, बट आपको फुल फॉर्म्स लिखनी होंगी जब आप अपना
क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, तो लाहौल स्पीति में हमारा टेम्परेचर क्या है? -5 है, ये -6 होगा, ये -7 होगा और ये -8 होगा। सो हमारा टेम्परेचर होगा -8। श्रीनगर में टेम्परेचर क्या होगा? अगर ये -5 है तो ये -4, -3, -2। श्रीनगर का टेम्परेचर इज -2। शिमला का टेम्परेचर क्या है? 5, दैट इज वेल अंडरस्टूड। ऊटी का टेम्परेचर क्या है? अगर ये 15 है तो ये क्या होगा? 14। और बेंगलुरु का क्या है? अगर ये 20 है, दिस इज 21 एंड दिस इज 22। सो बेंगलुरु का टेम्परेचर इज 22। अब हमें पता चल गया कि जो ये प्लेसेस गिवन है इनके टेम्परेचर्स क्या हैं। सो वी आर डन विद फर्स्ट क्वेश्चन। बी पार्ट, what is the temperature difference between the hottest and the coldest places among the above? अब यहाँ पे hottest temperature किसका हुआ? पॉजिटिव में hottest temperature किसका हुआ? That is बेंगलुरु का। बेंगलुरु का hottest है, that is 22 degrees। और coldest सबसे कम किसका हुआ? लाहौल स्पीति का, that is -8। दैट इज -8 डिग्रीज। अब इन्होंने हमें टेम्परेचर डिफरेंस पूछा है कि B दैट इज बेंगलुरु माइनस L दैट इज लाहौल स्पीति, इनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? तो 22 माइनस, ठीक है, -8 है, नेगेटिव है, तो ये ऐसे आएगा ना। 22 माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस होता है। So this becomes 8. 22 and 8 becomes 30. So the answer is that the temperature difference is 30 degree Celsius. बहुत सिंपल, आपको बस ध्यान रखना है नेगेटिव और नेगेटिव becomes positive. So second is also done. Third part is, what is the temperature difference between Lahaul Spiti and Srinagar? Moving on to C part, लाहौल स्पीति का हमारा टेम्परेचर कितना है? -8। श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है? हमने यहाँ लिखे थे पहले सारे टेम्परेचर, इट इज -2। अब हमें इनका डिफरेंस निकालना है। तो लाहौल स्पीति का डिफरेंस किसके साथ? श्रीनगर के साथ। तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों को, दैट इज -8 माइनस -2, -2, क्योंकि हमें एक तो सब्ट्रैक्ट करना है और श्रीनगर का टेम्परेचर इज -2। सो -8 माइनस माइनस बिकम्स पॉजिटिव, सो +2। बट माइनस एंड प्लस is minus and plus is minus, so 8 minus 2 is 6. So the temperature difference between Lahaul Spiti and Srinagar is 6 degree Celsius. ठीक है, it is 6 degree Celsius. आप यहां से भी देख सकते थे, that is अगर आपको ऐसे कैलकुलेट करना नहीं है तो आप ऐसे भी देख सकते हो कितना डिफरेंस है। 1 2 3 4 5 6, दिस इज मच इजियर। अगर हम इसको नंबर लाइन पे करें सो इट इज मच इजियर, तो हमें डिफरेंस पता चल गया 6 का। ऐसे ही आप लाहौल स्पीति, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था कि हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट के बीच में देखना था, वो भी आप इसको नंबर लाइन पर करके देख सकते हो। दैट इज अगर यहां पर है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 and 30 डिग्रीज। तो हम इसको नंबर लाइन पर भी करके, अगर आपको ये कैलकुलेशंस अवॉइड करनी है तो आप इसको नंबर लाइन पर भी कर सकते हो, बट यू नीड टू लर्न कि हम इसको कैलकुलेट कैसे
करते हैं. So we are done with third part also. Now the fourth part is, can we say temperature of Srinagar and Shimla taken together is less than the temperature at Shimla? Is it also less than the temperature at Srinagar? हम एक एक पार्ट करके इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो पहले है, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर. पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं यहां तक, टेकन टुगेदर. अब श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है? -2. शिमला का कितना है? 5. तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं. डी पार्ट, सो दैट इज कि श्रीनगर का टेम्परेचर एंड शिमला का टेम्परेचर टेकन टुगेदर. लेट्स हैव अ लुक. श्रीनगर का इट इज -2 एंड शिमला का इट इज 5. श्रीनगर का इट इज -2 एंड शिमला का इट इज 5. नाउ व्हाट डज इट मीन व्हेन टेकन टुगेदर? टेकन टुगेदर का मतलब है वी हैव टू ऐड दीज. सो -2 plus 5. Now what is -2 plus 5? Minus and plus is minus. So 5 minus 2 is 3. So it is 3 degree Celsius. So when taken together, इसका आंसर है that it is when taken together it is 3 degree Celsius. So the question is, when taken together is less than the temperature at Shimla. शिमला का कितना है? 5. तो जो ये taken together है, it is less than the temperature of Shimla. Is it correct? क्या ये 3 कम है? Yes, it is. So the answer is yes. When taken together, it is less than the temperature at Shimla. The second part is it also less than the temperature at Srinagar? क्या वो श्रीनगर से भी कम है? श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है? -2. So 3 degree Celsius कम है -2 से? No, it is not. 3 degree Celsius is not smaller than -2 degree Celsius. So it is not. So we are done with fourth part also. कि it is not less than the temperature at Srinagar, but it is, when taken together, it is less than the temperature at Shimla. So we are done with the first question. Moving on to the next question. Question number 8. Verify A minus B is equal to A plus B for the following values of A and B. So A की value, first part is A की value is 21 and B की value is 18. So let us take that A minus B is equal to A plus B. ठीक है, तो ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड और ये है हमारी राइट हैंड साइड. अगर हम पहले इसी को सॉल्व करें, ठीक है, फर्स्ट पार्ट को करें, तो A है हमारा 21 माइनस B कितना हो जाएगा हमारा? -18 इज इक्वल टू A कितना है हमारा? 21 प्लस B कितना है हमारा? 18. नाउ वेरी सिंपल. अगर आप थोड़ा सा देखो, हमने देखा था कि माइनस और माइनस कितना क्या होता है? 2 negatives makes a positive. That means 21 plus 18. और यहाँ पे भी हमारी राइट हैंड साइड क्या है? 21 plus 18. तो हमें यहीं से पता चल गया कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लोगे. दैट इज 21 plus 18 is 39 and so it is for the right hand side. So our LHS is equal to RHS, hence you can write verified or hence proved. Alright, हमें यहीं से ही, हमें वैसे इतनी कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपने ये लर्न कर लिया तो आपको ये समझ में आ गया कि अगर A माइनस और माइनस B है तो इट इज ऑब्वियसली माइनस और माइनस 2 negatives makes a positive, that becomes
plus b. If we solve the fourth part also, that is 28 minus 11 is equal to 28 plus 11. So 28 minus and minus becomes positive, so it becomes plus 11 is equal to 28 plus 11. 28 plus 11 is 39 is equal to 39. Our LHS is equal to RHS and hence proved. So these are very simple questions to solve, and also if you want to have a look at all the solutions of this exercise and coming exercises, you can go to our app, look for the solutions. We will now start with the properties of addition and subtraction of integers. There are 5 properties. First is closure under addition. Second, closure under subtraction. Third is commutative property. Fourth, associative property. And fifth is additive identity. So there are 5 properties of addition and subtraction of integers. Let us discuss in detail. So the first one is closure under addition. For any two integers, that is a and b, a plus b is equal to c, that is an integer. For example, अगर हम बात करें कि हमारे पास एक इंटीजर है let's say 8 और सेकेंड इंटीजर है हमारे पास 6, तो जो इनका रिजल्ट होगा that is 14, it is also an integer. कभी भी दो इंटीजर्स को जब हम ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट भी एक इंटीजर ही होगा. Second is closure under subtraction. If a and b are two integers, then a minus b is also an integer. अगर मैं 8 minus 6 कर रही हूँ, एक मेरा 8 इंटीजर है, 6 भी दूसरा इंटीजर है, तो इसका रिजल्ट भी एक इंटीजर होगा, that is 2. So मेरा सेकेंड जो आएगा, जो मेरा आंसर आएगा, that is also an integer. Third is commutative property. For any two integers, that is a plus b is also equal to b plus a. अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास दो इंटीजर्स हैं, अगर हम इसी एग्जाम्पल की बात करें, अगर मेरे पास दो इंटीजर्स हैं 8 प्लस 6, तो क्या मैं 8 प्लस 6 को 6 प्लस 8 लिख सकती हूँ? यस. अगर हम एडिशन की बात करते हैं, अगर हम एडिशन की बात कर रहे हैं तो और दो इंटीजर्स हैं तो इसको हम b प्लस a की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. दो इंटीजर्स हैं, लेट्स से 7 प्लस 3 इट इज इक्वल टू 10, और अगर मैं इसको 3 प्लस 7 लिखूंगी इट इज ऑल्सो इक्वल टू 10. ऑलराइट, आई होप आपको ये समझ में आया है. बट यहाँ पे है कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स. जो हमारी सब्ट्रैक्शन है ये नहीं है. यहाँ पे क्या चीज है, द पॉइंट ऑफ फोकस हेयर इज कि अगर यहाँ पे लिखा हो a माइनस b, किसी भी चीज को लिखा है a माइनस b, तो उसको हम b माइनस a तो बिल्कुल नहीं लिखेंगे. क्यों? क्योंकि when we are moving this, हमें इसको इसके साइन के साथ मूव करना है. तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस b प्लस a. सो इससे हमें क्या पता चलता है कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स. द फोर्थ प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. it teaches us about grouping. ग्रुपिंग कैसे? a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c. इसका मतलब क्या है? अगर मेरे पास 3 डिजिट्स हैं, ठीक है, 8 प्लस 2 प्लस 4. अब मैं चाहूं तो मैं पहले 8 प्लस 2 को पहले सॉल्व करूंगी और उसके बाद उसमें 4 ऐड करूंगी. तो कैन आई डू दैट? यस आई कैन. मैं पहले 8 प्लस 2 को
सॉल्व करूंगी विच इज इक्वल टू 10 प्लस 4 विच इज 14। अगर यहाँ पे यही लिखा है 8 प्लस 2 प्लस 4, अगर मैं चाहूं तो मुझे पहले इसको ऐड करना है, फिर मुझे इसको इसके साथ ऐड करना है। तो 8 प्लस 4 प्लस 2 इज 6 एंड 8 प्लस 6 इज 14। सो यस, हम ग्रुपिंग कर सकते हैं एंड देन हम सॉल्व कर सकते हैं। दिस मेक्स द कैलकुलेशंस मच इजियर। आप किसी भी चीज को कैसे भी ग्रुप करना चाहो, यू कैन डू दैट। The last property is additive identity. That is, when we add 0 to any integer, we get the same integer. मेरे पास एक इंटीजर है 10। मैंने 10 में 0 ऐड किया, मेरे पास क्या आया 10। तो किसी भी इंटीजर में अगर मैं 0 ऐड कर रही हूं, मेरा आंसर वही इंटीजर है। 0 में मैंने 20 को ऐड कर दिया तो मेरा आंसर इज 20 ओनली। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। लेट्स डू सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज वी हैव जस्ट लर्न्ड। सो द क्वेश्चन इज, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। अब हमें ऐसे दो नेगेटिव इंटीजर्स लिखने हैं, दैट इज -a एंड -b, जिनका डिफरेंस जो है इट इज इक्वल टू 8। ऑलराइट, सो -a माइनस -b गिव्स मी 8। ऐसे कोई भी आपको दो नेगेटिव नंबर्स बताने हैं जिनका डिफरेंस 8 होगा। ऑलराइट, अब यहां पे अगर मेरे पास नेगेटिव है एंड नेगेटिव क्या बन जाएगा यहाँ पे, माइनस माइनस 2 नेगेटिव्स गिव्स मी पॉजिटिव, दैट इज प्लस b इज इक्वल टू 8। अब माइनस प्लस क्या होगा, माइनस और प्लस, 1 नेगेटिव एंड 1 पॉजिटिव गिव्स मी माइनस। तो मुझे कोई ऐसे नंबर्स लिखने होंगे जिनका जब मैं डिफरेंस निकालूंगी इट कम्स टू 8। सो इफ आई राइट हियर माइनस लेट्स से 20, दैट इज a को अगर मैंने लिया -20 प्लस, ठीक है, प्लस 12, -20 प्लस 12 क्या होगा, प्लस माइनस कितना होता है, माइनस, एंड इट कम्स टू 8। सो कोई भी दो नेगेटिव इंटीजर्स में कोई भी नंबर्स ले सकती हूँ, सो उसका डिफरेंस 8 आएगा। ठीक है, तो मुझे ऐसे कोई भी दो इंटीजर्स लिखने थे यहाँ पर, सो मैं इसका आंसर लिख सकती हूँ कि एक -20 एंड -12। तो इनको जब हम माइनस करेंगे, इनको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस विल गिव मी 8। Second is, write a negative integer and a positive integer whose sum is -5. उसका सम जो है वो -5 होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर दैट इज -a एंड पॉजिटिव इंटीजर दैट इज +b whose sum is -5। इनको जब मैं ऐड करूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, -5। सो दिस इज -a प्लस b गिव्स मी -5। अगर -a को मैं -10 ले लूं और +b को मैं +5 कर दूं, तो प्लस माइनस क्या होता है, 1 नेगेटिव एंड 1 पॉजिटिव गिव्स मी नेगेटिव। So 10 minus 5 is 5. The answer is -5. So अगर मुझे एक नेगेटिव इंटीजर लिखना है यहाँ पे, I'll write -10 and a positive integer that is +5. इनका सम will give me -5. ऐसे आप कोई भी दो डिजिट्स लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको -10 और +5 ही लेना है।
आप कोई भी दो इंटीजर्स ले सकते हो जिसमें से एक नेगेटिव होगा, और जो नेगेटिव इंटीजर होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन द पॉजिटिव इंटीजर. व्हाई सो? क्योंकि जो हमारा सम है उसके आगे नेगेटिव का साइन है, और नेगेटिव का साइन कब आएगा? जब जो हमारा इंटीजर है जो ग्रेटर होगा उसका साइन आएगा. Third is, write a negative integer and a positive integer whose difference is -3. अब अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो मुझे एक नेगेटिव इंटीजर दैट इज -a एंड अ पॉजिटिव इंटीजर दैट इज +b, इनका डिफरेंस दैट इज माइनस निकालना है जो आएगा -3. So -a minus and plus gives me -b is equal to -3. अब माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस होगा. तो हमें ऐसे नंबर्स देखने पड़ेंगे कि जिनका जब हम ऐड करें उनका रिजल्ट जो है वो -3 आए. सो कैन वी राइट है -1. सो कैन वी राइट -1 एंड -2 गिव्स मी -3. माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस, और साइन नेगेटिव का आएगा. ग्रेटर नंबर पे नेगेटिव का साइन है इज इक्वल टू -3. सो यहाँ पे अगर मुझे एक नेगेटिव इंटीजर लिखना था और एक पॉजिटिव इंटीजर, तो आई कैन राइट -1 एंड 2. दिस विल गिव मी -3. सो दिस इज आवर सेकेंड क्वेश्चन. नाउ हाउ डू वी मल्टीप्लाई इंटीजर्स? Here are some basic terms, or you can say basic rules for multiplication of integers. So the first is multiplication of a positive and a negative integer. It is when we multiply a positive integer with a negative one, then we get a negative integer. We know that एक positive है और एक negative है, तो हमारे पास आंसर क्या होगा? Negative integer. राइट. सेकेंड इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स. ये भी हमें पता है, टू पॉजिटिव्स गिव मी अ पॉजिटिव. दो पॉजिटिव्स हैं तो उसका आंसर भी क्या होगा? पॉजिटिव. थर्ड इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स. द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर. दो नेगेटिव्स गिव्स मी अ पॉजिटिव. टू नेगेटिव्स रिजल्ट्स इन positive integer. Fourth is product of three or more negative integers. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं three or more negative integers की. If the number of negative integers is even, let's say जो मेरे पास negative integers हैं that is -a, -b, -c and -d. अब जो number of negative integers हैं that is 1, 2, 3 एंड 4. मेरे पास 4 नेगेटिव इंटीजर्स हैं, मतलब कि 4 इज एन इवन नंबर, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा इट विल ऑल्सो बी अ पॉजिटिव इंटीजर. अगर नंबर इवन है तो मेरा जो प्रोडक्ट होगा इट विल बी अ पॉजिटिव इंटीजर. इफ द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इज ऑड, इट इज लाइक लेट्स से -a, -b, -c. 1, 2, 3. मेरे पास 3 नेगेटिव इंटीजर्स हैं. 3 इज एन ऑड नंबर. अगर मेरे पास 3 नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा? नेगेटिव इंटीजर. ऑलराइट. अगर इवन नंबर है तो प्रोडक्ट होगा पॉजिटिव इंटीजर. अगर ऑड नंबर है तो प्रोडक्ट होगा नेगेटिव इंटीजर. नाउ लेट अस सी सम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स. हमने अभी लास्ट में पढ़ा था हमारी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज क्या हैं. नाउ वी विल हैव अ लुक एट द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स. सो द फर्स्ट वन इज क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन. दिस इज ऑल्सो सेम कि अगर मेरे पास दो इंटीजर्स हैं दैट इज a एंड b, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? इंटीजर दैट इज c. ठीक है, मेरे पास दो नंबर हैं दैट इज 2 एंड सेकेंड इंटीजर इज 4, तो जो मेरा प्रोडक्ट होगा दैट विल ऑल्सो बी एन इंटीजर. सेम जैसे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पढ़ा था. कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स अगर एक लिखा है a इंटू बी
तो क्या मैं उसको b इंटू ए लिख सकती हूँ? यस, आई कैन राइट दैट. हमने एडिशन में पढ़ा था कि हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, बट इट इज नॉट ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन एंड इट इज ट्रू फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो. अगर यहाँ पे लिखा है 2 इंटू 4, उसका आंसर क्या है? 6. अगर मैं इसको 4 इंटू 2 लिख दूं तो इट विल ऑल्सो बी 6. सो कॉम्यूटेटिविटी इज ट्रू फॉर मल्टीप्लीकेशन. Third is multiplication by 0. The product of an integer and 0 is 0. ठीक है, एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है 7. 7 को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा प्रोडक्ट क्या होगा? 0. यही हमने देखा था, हमने एडिशन में ये देखा था कि अगर हम किसी भी इंटीजर में 0 ऐड कर रहे हैं तो मेरा जो आंसर होगा वो इंटीजर होगा. यहाँ पर क्या है, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ 0 से, ठीक है, तो मेरा आंसर क्या होगा? 0. मैं किसी भी इंटीजर को जब 0 से मल्टीप्लाई करूंगी तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा? 0. 7 से किया, 8 इंटू 0 इज 0. सो किसी से भी करोगे उसका जो प्रोडक्ट होगा वो 0 ही होगा. फोर्थ इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. इसमें क्या है? फॉर एनी इंटीजर a, दैट इज a इंटू 1 is equal to 1 into a और a. आप किसी भी चीज को, किसी भी इंटीजर को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या होगा? हमारा सेम इंटीजर. अगर मैंने उसको 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो इट गिव्स मी 8. 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट क्या होगा? 16. दैट इज द सेम इंटीजर जिसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया था. But what happens when we multiply any integer with minus a? उस केस में क्या होगा? जब मैं उसको -1 के साथ मैंने उसको मल्टीप्लाई किया. इसमें देखो, अगर मैं आपको 8 कर रही हूँ, 8 को मैंने मल्टीप्लाई किया -1 के साथ, सो मेरा प्रोडक्ट क्या होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या होता है? नेगेटिव. सो इट वुड बी -8. ठीक है, तो ये होगा जब हम उसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. Fifth is associativity for multiplication. We can group integers in case of multiplication too. हम multiplication में भी उसको ग्रुप कर सकते हैं. हमने एडिशन में देखा था कि अगर मैं चाहूँ तो मैं ऐसा भी ग्रुप बना सकती हूँ और ऐसा भी बना सकती हूँ. सेम इज द केस विद मल्टीप्लीकेशन. अगर मेरे पास यहाँ लिखा है 2 इंटू 4 इंटू 5, 2 इंटू 4 इंटू 5, क्या मैं इसको पहले सॉल्व करूँ और इसको बाद में करूँ? Yes, I can do that. 4 into 2 is 6 and 6 into 5 is t. क्या अगर यहाँ पे लिखा है 2 into 4 into 5, क्या अगर मैं पहले 4 और 5 को मल्टीप्लाई करूं और फिर 2 को करूं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हम ऐसी ग्रुपिंग कर सकते हैं? Yes, we can do that. 2 into 5 4 is 20 and 20 into 2 is 40. So हम ऐसे मल्टीप्लीकेशन में भी ग्रुपिंग कर सकते हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर एनी इंटीजर्स a, b and c. इसमें क्या है? a, b and c है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? a इंटू बी प्लस सी. अगर मेरे पास कोई भी इंटीजर है 8 इंटू 2 प्लस 3, मेरे पास ये गिवन है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम क्या करते हैं? 8 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं to 2 also and to 3 also. जैसे कि मैं करूंगी 8 into 3 plus 8 into 2. हमने क्या किया? हमने a को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया b में भी और c में भी. That is distributive property. And then I will solve this. All right, 8 3s is 24 plus 8 2s is 16. So answer would be 24 plus 16 gives me 40. So हमने क्या किया? हमने किसी भी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है जब हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं. So these are the 6 properties for multiplication of integers. And now we will do how to make multiplication easier. Let's learn this with the help of some examples.
अब लेट्स सी, मेरे पास लिखा है 16 into 12. Now can I write it like 16 into 12 को क्या मैं 10 plus 2 लिख सकते हैं? Now can you see the calculation becomes easier here? It is easy to solve. Now what I have to do is, मुझे यहाँ पर 16 को 10 से मल्टीप्लाई करना है and then I have to multiply 16 with 2. Rather than multiplying 16 with 12 directly, मैंने 12 को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया as 10 plus 2. Now हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि हमें 16 को डिवाइड करना है 10 में and 2 में. So now 16 into 10 plus 16 into 2. 16 plus 10 is 16 into 10 is 160 plus 16 into 2 is 32 and 160 plus 32 gives me 192. So यहाँ पर बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमने जो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज लर्न करी थी उनको हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, राइट? अब लेट्स सी, मेरे पास एक और एग्जाम्पल अगर हम लें, सो इट इज 52 into -8 plus -52 plus -52 into 2. अब मुझे इसको सॉल्व करना. अब क्या -52 जो यहाँ पर ये है -52 into 2, कैन दिस बी रिटन एज 52 into -2? अगर हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे वो भी नेगेटिव में ही आएगा, तो हम 52 को ऐसे भी लिख सकते हैं 52 into -2. ठीक है, तो क्या है 52 into -8 देन प्लस 52 into 2, 52 into -2. ठीक है, 52 into -8 plus 52 into -2. नाउ यहाँ पे जो 52 है क्या वो कॉमन है? 52 यहाँ पर भी है, 52 यहाँ पर भी है, तो हम क्या करेंगे, हम 52 को कॉमन ले लेंगे, देन वी विल मल्टीप्लाई इट बाय -8. यहाँ पर क्या रह गया, हमने 52 को कॉमन ले लिया, इस वाली वैल्यू में हमारे पास क्या रह गया -8, उसको हमने यहाँ लिख दिया, प्लस यहाँ पे 52 बाहर कॉमन आ गया था, यहाँ पे क्या रह गया -2, राइट? हमने पहले इसको सॉल्व किया, यहाँ से कॉमन हमने 52 ले लिया, वी आर लेफ्ट विथ -8. 52 यहाँ से कॉमन है, वी आर लेफ्ट विथ प्लस -2. सो दिस बिकम्स 52 into -8 and plus minus is -2, right? 52 into -8 and minus becomes -10. minus 2 negatives gives me a positive. 8 plus 2 is 10. Sign किसका होगा, greater number का, that is -10. Is it very simple to multiply 52 with 10? This gives me 520 minus, क्योंकि 10 के आगे नेगेटिव है, so 52 into -10 gives me -520. So by applying the properties of multiplication, we can make multiplication easier. Now let us solve some questions related to the properties we have just learned. So find the product using suitable properties. First is 26 into -48 plus -48 into -36. So first of all we will group these two. हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, हम इनको ग्रुप कर सकते हैं, राइट? अब दो ग्रुप्स में अगर हम देखें तो हमारे पास कॉमन क्या है, -48 इधर भी है, -48 इधर भी है,
तो वी विल टेक -48 एज कॉमन। उसके बाद इस ग्रुप में हमारे पास क्या बचा, वी आर लेफ्ट विद 26, -48 हमारे पास बाहर है, प्लस -48 हमारे पास बाहर है, अंदर क्या बचा हमारे पास -36, सो वी आर लेफ्ट विद दिस। इसमें क्या होगा, -48 into 26 plus minus is -36, -48 into 26 minus 36 is -10, and minus minus becomes positive, so this becomes 48 into 10 is 480. So this becomes very simple to solve by using the properties. Moving on to the next question, we have -57 into -19, ये ग्रुप है हमारे पास एक, और यहां पर हमारे पास सिर्फ 57 है। सो कैन वी राइट 57 into 1 है, 57 into 1, ये हमारा एक और ग्रुप बन जाएगा। अब यहां पे हमारे पास कॉमन क्या आया, 57 कॉमन है, राइट। सो वी आर लेफ्ट विद -1, माइनस यहां से रह गया एक, -1, राइट, और इधर क्या है, इनटू, यहाँ पे माइनस, अगर हमने 57 कॉमन लिया तो यहाँ है -1 इनटू -19, -1 इनटू -19, प्लस हमारे पास यहाँ क्या बचा, 51 कॉमन है, तो यहाँ वी आर लेफ्ट विद 1, ठीक है, यहाँ पे क्या बचा 1, सो 57 इनटू माइनस माइनस बिकम्स प्लस, -19 इंटू करेंगे हम यहाँ पे +1, दिस बिकम्स 57 इंटू प्लस माइनस माइनस -18, राइट। 57 इंटू 18 इज इक्वल टू 1026। आप जब 57 को मल्टीप्लाई करोगे 18 के साथ, so you will get 1026. So this becomes our answer. All right. तो ये हमने solve किए by using the properties. The next question is, a cement company earns a profit of ₹8 per bag of white cement sold and a loss of ₹5 per bag of grey cement sold. अब इसमें क्या है कि जो आपका सीमेंट कंपनी है वो अर्न कर रही है प्रॉफिट ₹8 का पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट सोल्ड, ठीक है। तो व्हाइट सीमेंट हम कितने का सेल कर रहे हैं, एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 एंड अ लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। जब हम ग्रे सीमेंट सोल्ड कर रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं, तो हम क्या है, लॉस में है। क्या हम प्रॉफिट को पॉजिटिव से और लॉस को नेगेटिव से डोनेट कर सकते हैं? सो हमारे पास कितना लॉस है, ₹5 के लॉस पर। दिस इज क्लियर। फर्स्ट पार्ट इज द कंपनी सेल्स 3000 bags of white cement. So the A part is the company sells 3000 bags of white cement. White cement कितने का है, ₹8. So the total becomes 8 3s is 24,000 and 5,000 bags of grey cement in a month. So it becomes 5,000 bags into -5, क्योंकि हम उसको लॉस पे सेल कर रहे हैं। So this becomes 25,000. इसको हमने लॉस पे किया था, राइट। What is its प्रॉफिट और लॉस? अब हमें बताना है कि एग्जैक्ट प्रॉफिट या लॉस क्या है, वो हम क्या कैसे निकालेंगे। जो 24,000 हमारा क्या है, प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹24,000, लॉस इज इक्वल टू -25,000। ये लॉस में है इसलिए हमने इसको नेगेटिव में लिखा यहाँ पर। तो जो नेट अमाउंट हमारे पास आएगी कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो हम क्या करेंगे,
24,000 माइनस 25,000। प्रॉफिट और लॉस हमें देखना है एग्जैक्ट क्या है, तो हमारे पास क्या आया -1,000। माइनस हेयर डोनेट्स लॉस, सो एक्चुअल में नेट हमें क्या हुआ है, हमें लॉस हुआ है ऑफ ₹1,000. So this is the answer. Now the second part is, what is the number of white cement bags it must sell to have neither profit nor loss? अब ये पूछ रहे हैं कि व्हाइट सीमेंट बैग्स कितने सेल किए जाएं कि ना प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो, जो यहाँ पे भी 1,000 का हमें दोनों में हुआ है। If the number of grey bags sold is 6,400 bags. अब हम अगर बात करें ग्रे बैग्स की, तो ग्रे बैग्स हम 5 रुपीज के लॉस में सेल कर रहे थे। सो 6,400 into 5 gives us 64 into 5 gives us 32,000. ठीक है, जब हम 6,400 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इट गिव्स अस 32,000. अब ये कह रहे हैं कि व्हाइट सीमेंट बैग्स कितने सेल किए जाएं ताकि हमें नो प्रॉफिट नो लॉस हो अगर ग्रे बैग्स हम इतने के सेल कर रहे हैं। अगर हम ग्रे बैग्स इतने के सेल कर रहे हैं तो हमें 32,000 आ रहे हैं। तो व्हाइट बैग्स हम कितने सेल करेंगे ताकि हमें नो प्रॉफिट नो लॉस हो, राइट? सो 32,000 में हम कितने बैग सेल कर रहे थे? 6,400. अब हम निकालेंगे इसको, कैसे कैलकुलेट करेंगे? व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड विद 32, राइट? हमें जो हमारे व्हाइट बैग्स हैं वी आर सेलिंग इट फॉर ₹8. सो ₹8 को हम किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे? हमें नंबर ऑफ बैग्स निकालने हैं बाय विच वी विल गेट 32,000. अगर ग्रे बैग्स 32 के हो रहे थे और अगर व्हाइट भी 32 के ही होंगे तो हमें नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। सो हम 8 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर 32,000 आए? व्हाट वी विल डू इज, हम लेट, यहाँ पे क्या करेंगे कि लेट द नंबर ऑफ व्हाइट बैग्स, जो हमें व्हाइट बैग्स चाहिए है, इट लेट इट बी x. Let the number of bags be x. So हम इसको 8 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ so that we get 32,000. So x is equal to 32,000 divided by 8. 32 को हम 8 से डिवाइड करेंगे. 32,000 divided by 8. So this will give us the value x is equal to 8 को जब हम 32 से डिवाइड करेंगे सो हमें ये क्या देगा? 4,000. सो x की वैल्यू बिकम्स 4,000. तब इन्होंने पूछा है कि नंबर ऑफ बैग्स, कि हम व्हाइट सीमेंट बैग्स कितने सेल करें कि हमें नो प्रॉफिट नो लॉस हो, तो हम व्हाइट बैग्स 4,000 जब सेल करेंगे तो हमें नो प्रॉफिट नो लॉस होगा. Let's move to the last part of this chapter, that is division of integers. So we will start with the properties of division first. So what is the closure property? Right? अब हम देख रहे हैं कि division के लिए closure property क्या है. If A and B are integers, then A divided by B, और A by B, इसको हम A divided by B को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A by B is not necessarily a integer, an integer. इसका मतलब क्या है कि अगर let's say अगर मेरे पास दो इंटीजर्स हैं, ठीक है, एक इंटीजर है मेरे पास 6, दूसरा इंटीजर मेरे पास है 4. एक इंटीजर है 6, दूसरा इंटीजर है 4. सो 6 डिवाइडेड बाय 4, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2s are 2 3s are, we are left with 3 by 2.
बट 3/2 इज नॉट एन इंटीजर. 3/2 इंटीजर नहीं है. दिस इज अ फ्रैक्शन. सो इन केस ऑफ डिविजन हमारी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है इट इज नॉट ट्रू. हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि इंटीजर आंसर आ जाए, एक इंटीजर आंसर आ जाए. जैसे कि अब मेरे पास यहाँ पर है 10 एंड दूसरा इंटीजर है 5. इसको कैंसिल आउट करेंगे 2. माय आंसर इज 2. दिस इज एन इंटीजर. बट it is not always possible to get an integer in an answer. All right. Commutative property of a division. If a and b are two integers and if a divided by b is equal to b divided by a, only then we can say that division is commutative integers. ये चीज भी हमेशा पॉसिबल नहीं होती है. अब अगर मैं यहां लिख रही हूं 6 डिवाइडेड बाय 4, क्या मैं इसको 4 डिवाइडेड बाय 6 लिख सकती हूँ? इसको जब मैं कैंसिल आउट करूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 3/2. इसको मैं कैंसिल आउट करूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 2/3. Is 3/2 is equal to 2/3? No, it is not. So I will not write a divided by b is equal to b divided by a. So this is not true in case of divisions, but it can be sometimes possible. Associative property, division is not associative in integers. हम उसको भी ग्रुप नहीं कर सकते हैं. राइट अगर मेरे पास है 24 12 एंड 2, अगर मैं ये 3 नंबर्स की बात करूं, मुझे इनको ग्रुप करना है. मेरे पास क्वेश्चन है 24 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 2. मैं पहले इनको ग्रुप कर देती हूँ. ठीक है. अब 24 डिवाइडेड बाय 12 इज 2. 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1. ठीक है, पहले हमने इसको ग्रुप किया था. पर अगर हम इसको ग्रुप करें, अगर हम सेकंड वाले को ग्रुप करके देखें तो वो कैसे होगा अगर हम अब इसको ग्रुप करें. सो 24 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 2 इज 6. 24 डिवाइडेड बाय 6 इज 6 के टेबल में कब आता है 4. दिस इज इक्वल टू 4. तो हम इसको ग्रुप नहीं कर सकते. सो डिविजन इज नॉट एसोसिएटिव इन इंटीजर्स. सो डिविजन के केस में अगर हम बात करें ओवरऑल, कोई भी प्रॉपर्टीज जो हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में यूज करी थी वो डिविजन में यूज नहीं होती हैं. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चंस. इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग. Now students, we were just doing NCERT questions, right? But we provide worksheets and tests for this chapter too. अगर आपको कोई भी वर्कशीट करनी है या आपको कोई टेस्ट देना है कि देखने के लिए कि आपको ये चैप्टर कितनी अच्छे से समझ में आया है, so you can go to our app or our website and आप वहां पे चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हो टू सी कि आपको कंसेप्ट्स आ गए हैं और आपके कंसेप्ट्स कितने क्लियर हो गए हैं. You can also solve some worksheets to build up your concepts, right? So moving on to the first question, evaluate each of the following. 50 divided by 5 minus 5. All right. So 50 divided by minus 5. 5 कैसे जाएगा? 10 जा. So the answer is minus 10. So the answer is minus 10. This is very simple to solve. 50 divided by minus 5. ठीक है, माइनस है तो ये हो जाएगा minus 10. जी पार्ट, अब इसमें क्या है? minus 31 divided by minus 30. प्लस माइनस क्या होता है? 1 positive 1 negative gives me negative, so minus 1. This gives me minus 31 divided by minus minus क्या होता है? प्लस. But sign किसका आएगा? माइनस का. So this gives me minus minus plus is 31. Now minus 31 divided by minus 31 gives me 1. So the answer is 1. I hope ये आपको समझ में आया होगा कि हमने ये कैसे सॉल्व किया है. This was very simple to solve, right? The next question is, in a class test, +3 marks are given for every correct answer. ठीक है, अब यहाँ देखते हैं क्या है.
कि फॉर एवरी करेक्ट आंसर, ठीक है, कितने मार्क्स हैं? 3 मार्क्स हैं। एंड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर -2 मार्क्स हैं। इनकरेक्ट के -2 मार्क्स हैं। एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन, अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो उसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स। राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स। सो पहला पार्ट है राधिका के जो टोटल मार्क्स हैं, राधिका के जो टोटल मार्क्स हैं दे आर 20 मार्क्स। इफ शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर्स, 12 करेक्ट आंसर्स हैं, ठीक है, तो करेक्ट मार्क्स कितने हुए? अगर 12 करेक्ट हैं तो 12 मार्क्स के 12 करेक्ट के मार्क्स कितने हुए? 12 इंटू 3, क्योंकि 1 करेक्ट आंसर के 3 हैं तो 12 के कितने हुए? 12 इंटू 3, दिस बिकम्स 36 मार्क्स। टोटल मार्क्स 20 हैं, करेक्ट 36 मार्क्स हैं। हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली? अब उसने इनकरेक्ट कितने अटेम्प्ट किए? 12 हमें पता था उसने करेक्ट किए, पर हमें इनकरेक्ट नहीं पता है। और मार्क्स कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? एक अगर क्वेश्चन के इनकरेक्ट के -2 हैं तो इस क्वेश्चन के -2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कितने मार्क्स है। सो लेट्स से द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, द इनकरेक्ट क्वेश्चंस इज x। सो इनकरेक्ट मार्क्स कितने होंगे? x इंटू -2 which becomes -2x. Right? Now we know that correct plus incorrect will be equal to total marks. जितने भी आपके करेक्ट मार्क्स होंगे, करेक्ट क्वेश्चंस होंगे, करेक्ट मार्क्स होंगे, उसमें से आपके इनकरेक्ट जो क्वेश्चंस होंगे, इनकरेक्ट मार्क्स होंगे, ठीक है, इनकरेक्ट आंसर्स होंगे, उनको जब दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका टोटल मार्क्स आ जाएंगे। अब हमें करेक्ट पता है कि मेरे 36 मार्क्स हैं, इनकरेक्ट मेरे कितने हैं? -2x, और टोटल कितना है? 20। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। हम ये कैसे करेंगे? ठीक है, इसको हमने x लिया था, सो 36 प्लस माइनस क्या होता है? 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव गिव्स मी नेगेटिव, -2x इज इक्वल टू 20। ठीक है, इस इक्वेशन को यहां सॉल्व कर लेते हैं। नाउ 36 माइनस 2x इज इक्वल टू 20, ये हम ऊपर ले आए, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। अब जब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हम इस -2x की वैल्यू को जब इक्वल टू के साइन को उधर ले जाएंगे, दूसरी साइड ले जाएंगे, तो दिस विल बिकम पॉजिटिव, और 20 को हम इधर ले आते हैं क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यूज हमारे पास एक तरफ आ जाएंगी और x की वैल्यू हमारी दूसरी तरफ चली जाएगी। सो 36, 20 को हम इधर ले आए, 20 यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ आके नेगेटिव हो गया, और जो 2x यहाँ नेगेटिव था वो दूसरी साइड जाकर पॉजिटिव हो गया, दिस बिकम्स 2x। नाउ 36 minus 20 is 16 is equal to 2x। 16, 2 हम इसके डिनोमिनेटर में ले आते हैं, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के साइन के जब उधर जाएंगे उसको ऑपोजिट कर देंगे, मतलब कि उसको डिवाइड कर देंगे, 16 डिवाइड बाई 2x, सो x इज इक्वल टू 13, 2 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 8, वेरी सॉरी, 16 डिवाइडेड बाई 2 इज 8। ठीक है, तो हमारे पास आ गया कि इनकरेक्ट जो उसने आंसर्स दिए हैं वो कितने हैं? 8 हैं। हम इसको एक बार वेरीफाई भी करके देख लेते हैं। वेरीफाई कैसे करते हैं कि हमें पता चल गया कि करेक्ट कितने उसने किए? 12 करेक्ट किए, 12 इंटू 3 कितना होता है? 36। इनकरेक्ट उसने कितने किए? 8, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? -2 से, सो 8 इंटू -2 इज -16। ठीक है, 36 माइनस 16 कितना होता है? टोटल कितना आ गया हमारे पास? 20। क्या हमें यही बोला था? यस, हमें क्वेश्चन में यही बोला था, सो इट इज वेरीफाइड, हमारी x की वैल्यू बिल्कुल ठीक आई है 8। तो हम लिखेंगे कि द नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड इनकरेक्टली आर 8। ऑल राइट, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट। ठीक है,
पहले हमने राधिका का केस किया, अब हम मोहिनी का केस करते हैं. सो सेकेंड पार्ट, राइट. अब हमने करना है मोहिनी का केस. मोहिनी हैज स्कोर्ड -5 मार्क्स. ठीक है, सो द टोटल मार्क्स आर -5. टोटल मार्क्स कितने हैं हमारे पास? -5. दो शी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर्स, पर जो करेक्ट आंसर्स हैं वो कितने हैं? 7. और 1 मार्क का कितना है? +3. सो करेक्ट आंसर्स कितने हैं? कितने देखे अभी हमने यहाँ पे? 7, राइट. सो 7 into 3 which is equal to 21 marks, right. इनकरेक्ट की बात करते हैं. हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली? अब ये भी उन्होंने हमें नहीं बताया, तो इनकरेक्ट क्वेश्चंस हम उसको ले लेते हैं कि x क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस x है, इंटू -2. ठीक है, ये भी हमें पता है आ गया. 2 into -2 is -2x. हमें अभी हमने यही किया, करेक्ट प्लस इनकरेक्ट गिव्स मी द टोटल. करेक्ट कितने हैं? 21 मार्क्स. इनकरेक्ट कितने हैं मेरे? -2x मार्क्स. ठीक है, और टोटल कितना है मेरा? -5. सो 21 प्लस माइनस कितना होता है? -2x गिव्स मी -5. अब 21 -5 को जब इधर ले आएंगे तो माइनस बिकम्स पॉजिटिव. दिस इज 21 + 5 गिव्स मी, माइनस को जब उधर ले गए तो क्या रह गया? 2x. 21 + 5 is equal to 26 is equal to 2x. x is equal to 26. 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो डिनोमिनेटर में ले जाएंगे 2. दिस becomes 2 divided by 26 is 13. So x here becomes 13. So the number of questions attempted incorrectly are 13 questions. अगर वही हम इसको दोबारा वेरीफाई करते हैं तो हमें पता है करेक्ट कितने हैं? 21 मार्क्स हमने यहाँ कैलकुलेट किया. ठीक है, इनकरेक्ट 13 इंटू, इनकरेक्ट अगर हमने कैलकुलेट करना है तो वो आ गया 13 इंटू -2. 13 इंटू -2 इज -26. ये आ गए -26 मार्क्स. सो करेक्ट में से हम इनकरेक्ट निकाल देंगे. -26, 21 -26 प्लस माइनस क्या होता है? माइनस. ग्रेटर का साइन आएगा तो बिकम्स -5. क्या हमें क्वेश्चन में -5 ही दिया था? हमें क्वेश्चन में -5 ही दिया था. सो हमारे पास दोनों के आंसर्स आ गए, पार्ट 1 और पार्ट 2 के. ऑलराइट, सो हियर वी हैव डन विद आवर फर्स्ट चैप्टर. You can log on to our website or you can download the app where you can solve the chapter wise tests. You can get all the NCERT solutions there and you can unlock all the logged videos and tests by the EduRev Infinity package and ace your exams. Thank you. See you in the next lecture.